Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope so. You all are doing well. So here is a part 4 of chapter number 4 Microsoft PowerPoint 2010. So welcome back to computer class. Okay. So in last video I explained you what is a chart and what are the components of a chart. Okay. I not explain you how to insert it in a PowerPoint. So in this video I am going to explain you about how to insert a chart and how to format a chart. Insert a chart means how you can insert it to your slide, and formatting a chart means that how you can format means different design, shadings, colors, changing everything, how you can do it. It is called a formatting. Clear? So then afterward I am going to explain you formatting a chart. So here is a presentation only, means it is a PowerPoint. Okay, so in this one only I am going to explain you how you can create a chart. So press escape key first of all. So I am pressing escape key for going back. Okay, come to the screen here in a PowerPoint. Now I am making it zoom. How you can insert a new slide. So going to home tab, where you have to go, home tab. In a home tab, click on new slide button. Click on new slide button. Okay, there is a two part, up part and down part. We have to click on down side part because it gives you so many types of layouts. Suppose I want to give the heading also, and downside I want chart. So I am choosing this title and content slide. Okay, so new slide come, and right hand side you will get this in a big screen. First of all I am going to write down the title, means for that we have to click here. So click there and start writing that inserting a chart. Clear? This is our title. Now come down here, click to add text. Now tell me, you have to write down any text downside about the chart? No, we want chart. So that's why we are not going to click here, except that we are going in the center portion where I explain you how you can create a table. Okay, there is a second button for chart. Okay, so two way you can insert a chart. One is using these 6 buttons. From out of these 6 buttons, second button you can use for inserting chart, and second way by going to insert tab, and there is a chart option. You can see here chart option by clicking here also. Clear everyone? So which you want to use, as it is depends on you. Either come down in the center button, center 6 button, you can choose the second one, insert a chart, or by going to insert tab and choosing the chart option. Clear everyone? So I am choosing this center button, second one. So click here. Okay, so first of all I am going to explain you about this insert chart window. Left hand side you will get different types of charts. Okay, so as per your need, as per your data, you have to create your chart type. Clear? If you want to show the mark sheet, okay, so at that time you can create simple column chart. Which chart? Column chart. So click on the column chart, and right hand side you will get different types of column chart. Okay, this one is a clustered column, stack column, 100% stack column, 3D clustered column, 3D stack columns, and 3D 100% stack column, and 3D column. Out of this any one you can choose. Okay, and whatever you choose, the preview of that chart you will get downside. Clear? So I am going to choose this 3D clustered column. Okay, so you will get this type of chart on your screen. Clear everyone? So next, line chart, pie chart. Okay, area or anything you want to show, then pie chart is used. Bar chart is same as the column chart, but it is horizontal chart. Clear? Column chart is a vertical chart and bar chart is horizontal chart. Area chart, okay, XY sector, stock, surface, render, combo. These all types of charts are there. As per your data you can create any one. Okay, so now this is a column chart is required for our data. So click on the column chart from left hand side, and from right hand side choose the types, which type of chart you want to create. Okay, now come down and click on OK button. Okay, so whenever you click on OK, downside you will get your chart.
okay, and upside you will get one Excel sheet. Why we get this Excel sheet? Because you know very well chart is depend on data, okay, so table is there, then only from that table you can create a chart. So for that table you have to write down that datas, that records in this Excel sheet. Clear everyone? Now I am to show tell you one thing, that this is category 1, category 2, category 3 and category 4. What you have to write down here? So here it is x axis. कौन सा एक्सिस है ये? x एक्सिस, जो यहाँ पे आता है ना, इसको हम x एक्सिस बोलेंगे. यहाँ पे आइदर स्टूडेंट्स नेम या कुछ भी आ सकता है, ठीक है, स्टूडेंट्स नेम और क्लास और एनीथिंग विल कम हियर. क्लियर? एंड हियर सीरीज, व्हाट कम्स हियर? It is a y-axis. Series 1, series 2, series 3 is a y-axis which displayed here vertically. Okay. So in a x-axis you have to write. If you have to write down, if you want to make a mark sheet, then students' names comes here. Okay, and the marks comes here. Okay. Why 3 marks are there? Because suppose that आपको particular student के 3 subjects के marks देना है. That student number A, student A. उसके मैथ्स के मार्क्स तो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, इंग्लिश के मार्क्स यहाँ डिस्प्ले होंगे, साइंस के मार्क्स यहाँ डिस्प्ले होंगे. सेम एज स्टूडेंट 2, मतलब सपोज स्टूडेंट बी, हिज इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स. क्लियर एवरीवन? सो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कितने कितने चार्ट्स कॉलम्स मिलेंगे आपको? 3. ओके, इस डिपेंड्स ऑन योर डेटा. अगर आपको सिंगल चाहिए, मतलब सिंगल सब्जेक्ट के लिए लिखना है, सो यू कैन राइट इट डाउन फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट. क्लियर एवरीवन? So now here we want to write down something different thing like expenses. So what is the expense here? On a x-axis, what you have to write down? So no, just click on the cell and no need to clear backspace key. How you have to write down that? Concentrate here. Okay. So कैसे लिखना है? Just click on the cell. No need to press backspace key. Whatever the word is there, start typing. जैसे कि food, तो मैंने यहाँ पे food लिखना start कर दिया. ठीक है. So automatic जो पहले वाला word था delete होके food आ गया. Clear everyone? Now press enter key. तो गोइंग डाउन. नाउ सेकेंड एक्सपेंस, नो नीड टू क्लियर, डायरेक्ट स्टार्ट राइटिंग, जैसे कि W, वाटर बिल. क्लियर? प्रेस एंटर की, देन इज कमिंग रेंट. प्रेस एंटर की, देन कमिंग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिसिटी बिल. ओके, अगर आपको बैकस्पेस की प्रेस करके पहले क्लियर करना है, सो यू कैन क्रिएट इट. ओके, एंड आइदर और यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, जैसे मैंने आपको बताया वैसे. नाउ सीरीज 1, सीरीज 2 एंड सीरीज 3. पहले वो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 लिखा हुआ था, उसकी जगह पे अब लिखा हुआ होगा फूड, वाटर बिल, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल. क्लियर एवरीवन? नाउ चलो देखते हैं मंथ्स. अब यहाँ पे आएगा मंथ्स नेम, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस होता है मंथ वाइज होता है. ठीक है, तो मुझे 3 मंथ्स का चाहिए. तो जैन, प्रेस टैब की, फेब, प्रेस टैब की, मार्च. क्लियर? सो यहाँ पे अब सीरीज 1, 2 और 3 की जगह पे क्या हो गया? जैन, फेब और मार्च. और ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? लीजेंड्स. क्या एक्सप्रेस करता है लीजेंड? द कलर ऑफ द डेटा सीरीज. जो कलर है वो एक्सप्लेन करता है. आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जैन का बिल है, कौन सा फेब और कौन से मार्च का? सो इट डिस्प्ले दैट ब्लू कलर इज मेंशन एज अ जैन एक्सपेंस. Feb means for orange color is for the Feb expense and this one is a March expense. Clear everyone? So ये हो गया legend, ये हो गई data series, okay, and ये x axis और ये y axis. Okay, now let's start writing the expense. Expense is Jan expense of all expense is 800, 300, 2000 and last is 3200. क्लियर? प्रेस एंटर की. अब यहाँ जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा जो भी एक्स वाई एक्सिस है वो चेंज हो गया. लास्ट जो सबसे ज़्यादा हमने अमाउंट्स लिखी वो कौन सी है? 3200. उसके हिसाब से उसने ले लिया 3500. क्लियर?
बट 3500 के अंदर 3200 ये लास्ट वाला, क्लियर, बाकी सारा डाउन हो गया। ओके, सो एज पर वॉट एवर द जो भी हमने अमाउंट डाली उसके हिसाब से उसने कॉलम्स को क्रिएट कर दिया है। गॉट इट एवरीवन? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फैब। ओके, अब मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, जूम आउट करती हूँ, दैट वहाँ पे मैं एंट्री करूँगी फैब में, तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फैब वाला मीन्स ऑरेंज कॉलम ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ले लेगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट फूड का लिखा है 850 एंड जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, लुक एट दिस, 850 के हिसाब से कॉलम क्रिएट हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 500। लुक, you just concentrate on a columns, 2000, look at this, and 3000, sorry 1000, clear everyone? So जैसे ही आप अमाउंट इंसर्ट करोगे उसके हिसाब से ऑरेंज कॉलम ने अपना अपना पोजीशन ले लिया, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन मार्च। ओके, सो मार्च है 900, 400, 2000 and 1500. Okay, so you can see that जो जो आपने एंट्री की है उसके हिसाब से मार्च का भी कंप्लीट हो चुका है, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन? सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स की नेम अगर आपको चाहिए तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्विक लेआउट है। व्हाट इज दैट? क्विक लेआउट, जिसमें आपको जो भी चूज करना है वो चूज कर सकते हो फ्रॉम हियर। ओके, एज पर योर चॉइस, जो भी हमें सूटेबल है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। लुक एट दिस, एक्सेस टाइटल्स आ गए। ओके, सो एक्सेस टाइटल सपोज दे दें यहाँ पे दैट एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस, और ये क्या है, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्लियर करो और लिख दो यहाँ पे एक्सपेंसेस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस का नाम और ये हो गया वाई एक्सिस का नाम, और लीजेंड क्या शो करता है, कलर ऑफ दैट मंथ्स नेम। क्लियर? अब चार्ट का टाइटल दे देते हैं एक्स मंथली एक्सपेंसेस। क्लियर एवरीवन? So this all things you have to do on a chart title. Now suppose मुझे इसके सबके कलर्स चेंज करना है। सभी जैन के जितने भी कॉलम्स है, हर एक्सपेंस का सबका कलर सेम होगा। तो एक बार ही सिर्फ फर्स्ट पे क्लिक करो, देन राइट क्लिक ऑन इट एंड फॉर्मेट डेटा सीरीज। विच ऑप्शन यू हैव टू चूज? राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डेटा सीरीज, राइट साइड पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से चूज द कलर एंड फिलिंग कलर। सपोज आपको यहाँ से जो भी देना है, रेडियन, पिक्चर, टेक्सचर, पैटर्न ऑल्सो यू कैन गिव। देखो जैसे कि मुझे ये देना है। सो अब सारे जितने भी जैन के एक्सपेंस है वो सारे का ये क्या चेंज हो गया, डिज़ाइन चेंज हो गई। इवन ये डिस्प्ले भी क्या कर रहा है, डिज़ाइन डिस्प्ले कर रहा है। सेम एज दिस वन, चेंज फैब का चेंज करो, राइट क्लिक करो, डेटा सीरीज। ओके, सेम गोइंग टू फिल। ओके, नाउ पैटर्न, अब उसका जो भी आपको चूज़ करना है चूज़ कर लो, जैसे कि सपोज दिस वन। ओके, इवन उसके बाद आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसका कलर चाहिए पिंक, लुक एट दिस, तो ये कलर हो गया पिंक। ओके, एंड यहाँ पे लीजेंड भी शो कर रहा है उसकी जो भी डिज़ाइन है, दैट वन। सेम एज विद द मैच, राइट क्लिक, एड फॉर्मेट डेटा सीरीज, go to fill, ओके, पैटर्न फिल। अब दूसरी डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं, सपोज ये वाला, चेंज द कलर ऑफ इट लाइक ग्रीन। ओके, सो दिस वे you can do formatting a data series. Clear? Now background. अब
बैकग्राउंड दो चीज़ से कर सकते हो, या तो चार्ट एरिया का या तो प्लॉट एरिया का। प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया डिफरेंट है। अगर चार्ट एरिया करोगे तो प्लॉट एरिया भी पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर प्लॉट एरिया करोगे तो चार्ट एरिया में नहीं होगा। कैसे? तो देखो, राइट क्लिक इनसाइड द प्लॉट एरिया एंड फॉर्मेट वॉल, फॉर्मेट बैक वॉल। क्लियर? सपोज मुझे इसको देना है ग्रेडियंट फिल। लुक एट दिस, क्या चेंज हुआ? सिर्फ प्लॉट एरिया। ओके, लेकिन अगर आप चार्ट एरिया में राइट क्लिक करोगे, सो इट विल गिव यू, राइट क्लिक ऑन इट, इट विल गिव यू ऑप्शन व्हाट? फॉर्मेट चार्ट एरिया। एंड यहाँ पे फिर ग्रेडियंट फिल करोगे, सो लुक, पूरे चार्ट एरिया का कलर चेंज होगा। गॉट इट एवरीवन? सो चूज द डिफरेंट कलर ऑफ इट। लुक एट दिस। ओके, सो इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? ठीक है। सपोज ये डेटा सीरीज के कलर्स, ये वाइट है, अब हमें नहीं दिख रहा है, तो फॉर्मेट एक्सिस, राइट क्लिक ऑन इट एंड फॉर्मेट एक्सिस द कलर। What we can say, it is white, so we will do black. Look at this, black color is done. Okay, then next, suppose this one, format axis title, इसको भी कर देते हैं black. क्लियर? सो ये सब चीज़ें, सब ये फिर ये यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस टाइटल for the month names. Okay, so go to fill and change the color black. Clear everyone? So अब visible है, right? Go to color and change it. Okay everyone? Now legend same, click करते जाओ और change करते जाओ। ठीक है? Now the lines, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जो वाइट है उसकी जगह पे ब्लैक कर दो, सो कलर्स ब्लैक हो गए। क्लियर एवरीवन? अब लर्न करके देखते हैं कि कैसा दिखेगा। सो वेन एवर यू हैव टू प्रेस विच की? F5 की। सो वेन एवर यू प्रेस F5 की, द फर्स्ट स्लाइड विल कम, राइट? प्रेस एंटर, सो यू विल गो ऑन अ नेक्स्ट, प्रेस एंटर, सो यू विल गेट योर चार्ट। क्लियर एवरीवन? सो आज आपका एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। यू हैव टू क्रिएट वन चार्ट फॉर स्टूडेंट मार्कशीट। ओके, जिसमें आपको 4 स्टूडेंट्स के नेम्स लिखना है एक्स एक्सिस पे, और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, आउट ऑफ 100। क्लियर एवरीवन? 3 सब्जेक्ट, कोई भी एज पर योर चॉइस ले सकते हो। देन आफ्टरवर्ड एक चार्ट इंसर्ट करो पावर पॉइंट में, उसके बाद उसके डेटास लिखो 4 स्टूडेंट्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। ओके, उसके बाद इस तरह से चार्ट को फॉर्मेट करो, डेटा सीरीज भी, उसके एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस के कलर्स भी, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज। क्लियर? दिस इज योर प्रैक्टिकल। अगर आपको प्रैक्टिकल करने में कुछ भी डाउट्स है, इफ़ यू गेट एनी डाउट, इफ़ यू कंफ्यूज एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट, you can ask me in a comment section. I will give you answer for that problem. Clear everyone? So till then, best of luck for this practical. We will come in the next video, and then afterward I will explain, I will ask you that you complete your practical or not. Okay, so till then, stay healthy, be happy. Bye everyone.